में बोलूंगा, बाद में जैसा आप कहो, हिंदी तेलुगु जो भी है। When Manipur burns, it is news in the national capital. When a hospital in Uttar Pradesh burns, it is news. When people oppose Dharavi in Mumbai, it is news. When tribals are up in arms against redevelopment project in Lakshadweep, it is news. Of course, we are Indians. My heartfelt condolences to the parents who lost their children in the Jhansi hospital accident. My heartfelt sympathy to those who are in the constant state of war in Manipur. But I am here to appeal to this nation about the anarchy in Telangana today. A state that was formed in 2014, a state that had become a beacon of development, pro-people policies and great strides of progress in agriculture and IT sectors alike. The last 10 years is now suffering in the anarchy that Congress has brought in. When the Chief Minister's brother, as was pointed out by Jyoti right away, just a couple of minutes ago, when the Chief Minister's brother openly threatens tribals, there is no case filed. When the Chief Minister's brother, who has no protocol, is not a ward member, is not a councillor, he is not a sarpanch, he is not a Zilla Parishad member, he is a nobody, he is not elected by public. But he marches in with 250 policemen, and the collector rushes out to welcome him. He is apparently the de facto Chief Minister of the constituency. When the police, who are acting like the private army of the Chief Minister, Revant Reddy, descend upon the Tandas, the Lambada tribal hamlets in Lagacherla, absolute silence from the nation. They beat up women in the middle of the night at 1 a.m. and 2 a.m. Absolute silence from Congress party and Rahul Gandhi. They molest the women. Absolute silence from the national capital. They arrest men and children illegally. Absolute silence. They are being tortured in custody. We hear nothing from Rahul Gandhi. So I ask him, Mr. Gandhi, Pradhan Mantri Modi ji, leader of opposition hai aur aap Pradhan Mantri hain. What does it take for you to break your silence? Why are you both not talking about Lagacherla? Why are you not talking about these atrocities that have been committed by the Congress government in the Chief Minister's own constituency in Kodangal? What are you waiting for? Are you waiting for houses to burn? Are you waiting for people to die? Do you want a massacre to happen so that you actually open up and speak? Will you be silent till then? What is happening in Lagacherla is no less than what is happening in Manipur or Lakshadweep. We urge the media to break this story, to bring it to the attention of the nation. We urge Rahul Gandhi, whose party is running Telangana today, whose Chief Minister is representing Kodangal, where these atrocities are happening, to respond, to raise to the occasion. बार बार ये कहना, गला फाड़ फाड़ के, कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम आदिवासी, पिछड़े और ओबीसीज के मददगार है, ये लिप सर्विस से कुछ नहीं होता. आप अपना साइलेंस तोड़िए. आपके चीफ मिनिस्टर को आदेश दीजिए, बोलिए उनसे कि इनसे बात करें, इन बहनों से, और उनकी दर्द समझे, उनकी दुख समझे और कुछ कीजिए उस बारे में. मैं कभी का एक बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं. ये राहुल गांधी जी एक आदमी है कि उनमें एक और आदमी छुपा हुआ है, क्योंकि उनका कहना कुछ है और करना उनकी गवर्नमेंट की कुछ और ही है. हमें नहीं समझ आता कि क्या दोगलापन आपका है. मुझे ये भी एक समझ नहीं आता कि आप वादे तो काफी करते हो, बातें भी काफी करते हो. आप कह रहे थे अभी 2-4 मिनट पहले, हमने आपको वीडियो दिखाया कि जो भू अधिग्रहण एक्ट आपने लाया, उसके तहत आज हिंदुस्तान में हर गरीब को एक राहत मिलती है. पर आप यहां जो गरीब बैठे हैं, उनकी दर्द समझें. वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी एक एक एकड़ जमीन 60-70 लाख वाली है और आपकी गवर्नमेंट देना चाहती है 8 या 10 लाख. तो ये कहां की इंसाफ है? आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती? आप इतने लंबे लंबे भाषण देते हो, झारखंड में, महाराष्ट्र में, अदानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ.
हो क्या रहा है तेलंगाना में? वही तो हो रहा है। एक फार्मा विलेज, एक चीफ मिनिस्टर के एलिजिडली उनकी सन इन लॉ के लिए, उनकी कंपनी के लिए आज इतने लोगों के, इतने फैमिलीज के जमीन हड़पा जा रहा है और आप बोलते नहीं, आप कम से कम मुंह तक नहीं खोलते। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, राहुल जी, खारगे जी, मोदी जी, अभी पार्लियामेंट भी सेशन में आने वाली है 25 तारीख से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे लीडर से, सुरेश रेड्डी साहब से, राज्यसभा में आवाज उठाइए, सुनाइए इनकी दर्द और डिमांड करिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और कांग्रेस पार्टी से भी कि एक स्टैंड ले इस मुद्दे पे। और राहुल गांधी जी जो एक नारा देते हैं, हाथ से हालत बदलने का जो एक नारा देते हैं, आज तेलंगाना को समझ आ गया हाथ से कैसे हालात बदल रहे हैं, कैसे अच्छे से बदतर बनते जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से साफ साफ पूछना चाहता हूं, किसके हालात आपने बदला पिछले 11 महीने में? रेवंत रेड्डी जी का हालत बदलने की कोशिश की, अदानी जी की, आपकी, आपकी पार्टी की, किसकी आपने हालात सुधरने की कोशिश की पिछले 11 महीने में? द होल ऑफ तेलंगाना मूवमेंट is based on our fight for our rights. Today, our tribal brothers and tribal sisters, our backward classes brothers and sisters, our scheduled class brothers and sisters are fighting for their rights. Why are you silent, Mr. Gandhi? Please answer my question. आज तो प्रचार तो खत्म हो गया, अब तो आपके पास कुछ समय होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में आप बिजी थे, समझ सकते हैं, पार्टी चला रहे हो आप और खारगे जी, तो हम समझ सकते हैं कि आप बिजी थे। कम से कम अभी तो आवाज उठाइए, अभी आपके चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, बात करिए कि आधी रात को जाके इनके घर पे अटैक करने की क्या जरूरत थी? इतनी जुल्म जमीन के लिए, क्या ना कहना जुल्म है? हम जमीन नहीं देंगे ये बोलना जुल्म है? बुलाइए, बिठाइए, उनको सेटिस्फाई करिए, तब जाके जमीन लीजिए। पर ऐसे जुल्म अगर नहीं दोगे तो कुछ भी करेंगे, कुचल देंगे, ये कहां की रीत है? डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं चलती। और मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आज हमें लगता है कि बीजेपी ऐसे एक्ट कर रही है कि उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है तेलंगाना में। भाई मोदी जी, आप तो कहते रहते हो, बार बार कहते हो कि तेलंगाना एटीएम बन गया शाही परिवार का, तो आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आप क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आपकी पार्टी क्यों नहीं बोलती इस जुल्मों के बारे में, इन गरीबों के बारे में? आपकी तरफ से क्यों कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है? आज लोगों के घर बुलडोज किए जाते हैं तेलंगाना में। Tribal women are being molested, their modesty is being outraged. I'm not making a false accusation. You've just heard my sister, what she said. इसके बाद भी आप नहीं आवाज उठाएंगे? ये कहां की रीत है? वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, ये कहां की रीत है? तो इसीलिए मैं कहता हूं, योर साइलेंस इंडिकेट्स दैट यू आर कंप्लिसिट। मोदी जी, ये गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी गलती करती है, जुल्म करती हैं, जिम्मेदारी यह है ऑपोजिशन में रहने के नाते हमारी और आपकी लड़ना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। और आपकी पार्टी तो भूल गई आपकी प्रिंसिपल फिलॉसफी, प्रिंसिपल वर्ड ऑन जस्टिस। एक भी लफ्ज आज तक नहीं सुनाई दे रहा है। मैं एक और चीज भी आपको समझाना चाहता हूं, हो क्या रहा है इतना। अभी जो हमारे बहनों ने कहा, असली में क्या हो रहा है, असलियत क्या है? असलियत यह है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई तेलंगाना में, पिछले करीब 12 महीने में, 1 साल में, जबरदस्ती की जा रही है यहां पे रेवंत रेड्डी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोदंगल में, जहां उनका मन बन गया कि एक फार्मा विलेज बनाना है 3000 एकड़ में। तो क्या किया उन्होंने दुदियाल मंडल में पोलेपल्ली, हकीमपेट, पुलिचरला कुंटा तांडा, आरबी तांडा और लकाचरला, ये पांचों गांवों में नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया 1373 एकर्स अक्वायर करने का एक फार्मा विलेज बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने नोटिस इश्यू किया 580 फार्मर्स को, 580 किसानों को नोटिस दे दिया, जिनके पास 632 एकड़ जमीन फिलहाल अभी है, और सेकेंड फेज अलग से करेंगे। जब इन्होंने इंकार किया कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी जमीन मार्केट वैल्यू उसकी 60-70 लाख है, तो हम नहीं देंगे, और हमारी ये पुश्तैनी जमीन है, हम देना नहीं चाहते क्योंकि इसी पे हमारी जिंदगी निर्भर है, हमारे बच्चे निर्भर है, इसीलिए नहीं देना चाहते हैं। तो आज उनका हालत ये है, उन पे आज अटैक किया जाता है, उनके घर वालों को अरेस्ट किया जाता है,
टॉर्चर किया जाता है और हमारे बहनों को मोलेस्ट किया जाता है। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये तरीका है डेमोक्रेसी में गरीब से पेश आने का? आप सहमत है? अगर आप कोई रईस आदमी के घर पे होता है तो आपके लिए सहमत होगा? ये आवाज नहीं उठाएंगे तब भी। इसलिए मैं कहता हूं, पूछना चाहता हूं, इनकी गलती यही है किसानों की कि इन्होंने मना कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे। जब आए थे कलेक्टर और बाकी ऑफिसर पब्लिक हियरिंग के लिए, जैसा अभी हमारे बहन ज्योति ने कहा, उनको अंदाजा तक नहीं था कि कलेक्टर आए वहां पे। उनको अंदाजा तक नहीं था। कोई अफसर आए, इनको सुनाना था। तो उनकी दर्द 9 महीने वाली दर्द है। 9 महीने से ये लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि कोई हमारी आवाज सुने, कोई कम से कम रिस्पॉन्ड करे। कोई नहीं सुनने के तैयार है। न चीफ मिनिस्टर समय देते हैं, न इंडस्ट्रीज मिनिस्टर समय देते हैं, जिला के जो मिनिस्टर है उनके पास समय नहीं है। तो क्या करें? हड़ताल कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। 9 महीने के बाद जब कोई अफसर आ गया गांव पे तो उनके सामने प्रोटेस्ट किया। अब ये इनका गुनाह है कि जमीन नहीं देना था, प्रोटेस्ट किया, तो वही गुनाह था। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया इन पे, हमारे गरीब बहनों पे, भाइयों पे। और आज तक 30 से ज्यादा किसानों को जेल भेज दिया गया जहां उनकी टॉर्चर की गई, 3rd डिग्री टॉर्चर। हम खुद मिले उनसे संगारेड्डी सेंट्रल जेल में, हम खुद जाके मिले। हम हमारे बहन सत्यवती जी जाके मिले वहां पे। हमने देखा कि उनके हाथ और पैर पे काफी मार थे, काफी चोट थे। पूछा हमने उनसे, क्यों नहीं कहा अपने मजिस्ट्रेट के सामने कि आपके साथ ये जुल्म हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम कहते मजिस्ट्रेट के सामने, हमें कहा गया कि फिर से पीटेंगे आपको और आपके घर जाके घर में घुस के आपके घर वालों को मारेंगे, तो इसीलिए हम डर गए। अब क्या करें बताइए आप? तो इसीलिए आज ये सभी हमारे बहन और जो गरीब किसान के घर वाले हैं यहां तक चले आए दिल्ली में। आज इन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन से मिली, दिल्ली में आज उन्होंने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन से मिली, उन्होंने मिला, और साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनसे भी मुलाकात हुई, और नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उनको भी अपना दर्द उन्होंने सुनाया। उम्मीद करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन कमिश्नरों की तरफ से कुछ राहत मिली, उम्मीद हमें है कि फिर एक बार कुछ आस है कि कुछ जस्टिस मिलेगा। हम उम्मीद यह भी करते हैं कि केंद्र सरकार भी इस बात को गंभीरता से लेगी और कार्रवाई शुरू करेगी। और उम्मीद यह भी करते हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि झारखंड में, महाराष्ट्र में जो भी भाषण देना था दे चुके हैं, तो राहुल गांधी जी कम से कम अब रेवंत रेड्डी को फोन लगाएंगे, बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई इनको छोड़ो, पहले किसानों को, 30-32 लोगों को जिनको आपने जेल भेजा उनको घर भेज दो, और ये जुल्म जो है बैठ के बात करो, तफसील में समझाने की कोशिश करो। अगर इस बात से कुछ फायदा हो सकता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे राहुल जी से कि आप खुद चले आइए। कल हमारी बहन कह रही थी ज्योति कि राहुल जी आपने तो कहा इलेक्शन के टाइम पे कि अगर आप आवाज दो, कल तेलंगाना में कोई गरीब आवाज अगर देगा तो मैं खुद चलाऊंगा तेलंगाना। बुला रहे हैं राहुल जी को, आइए आप, कोडंगल आइए, लगचरला आइए, बैठिए हमारे बहनों के साथ, आके बैठ के उनसे बात करके तफसील में समझाइए कि क्या फायदा होगा मुख्यमंत्री जी के जो दामाद है उनकी कंपनी के लिए जमीन देने में, क्या क्या फायदा है, इनको क्या क्या फायदा मिलेगा, आप स्वयं समझाइए। अगर आप नहीं आना चाहते तो हमारे बहन रुक जाएंगे दिल्ली में, आप समय दीजिए, मिलेंगे दिल्ली में, आपके घर आएंगे, बुलाइए आप, क्योंकि दिल्ली में है वो, उपस्थित हैं, तो तैयार है आपसे मिलने को। मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो बात करते रहते हो संविधान के बारे में, गरीबों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, ओबीसीज के बारे में, अगर उन बातों में सच्चाई है, उन बातों में सिंसियरिटी है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको बुलाना पड़ेगा। आपका जो एक तानाशाही चीफ मिनिस्टर है, जो एक अनार्की चला रहा है तेलंगाना में, बुलाइए, समझाइए उनको कि तानाशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। बस मैं इतना ही कहता हूं। इन बहनों की दर्द मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमें हमदर्दी है मणिपुर से, हमें हमदर्दी है धारावी वालों से, हमें हमदर्दी है झांसी में जो अस्पताल में एक्सीडेंट जो हुआ, जो बच्चे गए उसमें, जो बच्चे मर गए, जो इनकी मृत्यु हो गई, उनकी पेरेंट्स से हमदर्दी है। पर आपको भी हमदर्दी होना चाहिए हमारे बहनों के साथ, क्योंकि ये कम दुख नहीं है, कम दर्द नहीं है। बस इतना ही कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूं।
और మా తెలుగులో